السلام علیکم ناظرین۔ انتہائی دردناک واقعہ، جتنا افسوس اور جتنی مذمت اس پر کی جائے کم ہے۔ ایک ماں باپ کا اکلوتا جگر ان سے بچھڑ گیا۔ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ان سے دور ہو گیا۔ یہ واقعہ شیخو پورہ میں پیش آیا، جہاں ایک خاندان نے 4 مہینے تک اپنے بیٹے کی تلاش میں ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر پولیس اسٹیشن کا چکر لگایا، لیکن انصاف کے دروازے ان پر بند رہے۔ یہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ماں باپ کا واحد سہارا تھا، گھر کی امید، اور آج وہ بھائی، وہ بیٹا، وہ سہارا کسی جسمانی صورت میں واپس نہیں آیا، صرف ہڈیاں اور مائندہ آثار واپس آئے۔ 4 مہینے تک یہ بچہ لاپتہ رہا۔ 4 مہینے تک ماں باپ اور بہنیں پولیس اسٹیشنوں کے چکر لگاتے رہے۔ باپ روزانہ پولیس اسٹیشن جاتا، ہر بار دہائیاں دیتا، سوال کرتا، اپنی عاجزی کے ساتھ انصاف مانگتا، لیکن پولیس والے صرف پیسے لینے میں مصروف تھے۔ روز کہتے رہے، 5,000 دو، 10,000 دو، 20,000 دو، اور کچھ نہیں۔ جب بسم اللہ ماما نو نے اس دن کی اسی ٹائم نیچے آیا، سیڑھیاں تو اتردا مینوں بھی بائی بائی کردا آیا۔ میں کہا بھائی اج تینوں کی ہے؟ کہنا پتہ نہیں، اج میرا دل کردا میں تانوں بائی بائی کرنے۔ میں کہا بھائی دس کوئی چیز ہے یا کی مسئلہ ہے؟ ہاں جی بائی بائی کری جا رہا ہے، میرا دل کردا میں تانوں بائی بائی کرا۔ جانی دفعہ ماما نے بھی بائی بائی کردا چلا گیا ہے۔ اے 4 ماہ بعد دیکھو انہوں نے میرے پاپا نے سامان چکایا۔ بھائی بہنوں کو جہیز دیتے ہیں شادیوں پہ، اور انہیں پورا سال نے مجرموں کا ساتھ دے کے رل کے میرے بابا کو بہنوں کا جہیز دے دیا۔ 5 بہنیں بانٹ لو آپس میں، انہوں نے اچھی نہیں کی۔ ناظرین، ان بہنوں کی دہائی سنیں۔ یہ کیسا قانون ہے جو ہمیں انصاف نہیں دے رہا؟ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ حقیقی کربلا صغریٰ کا منظر ہے، جہاں مظلوم ایک باپ، ایک ماں اور بہنیں روزانہ ظلم کا سامنا کر رہی ہیں، اور انصاف کے دروازے بند ہیں۔ ماں روتی رہی اور کہتی رہی، خدا کا واسطہ ہے میرا بیٹا ڈھونڈ دو، لیکن جواب کیا ملا؟ پہلے پیسے دو، پھر FIR ہوگی، پٹرول کے پیسے دو، موبائل ٹریسنگ کے پیسے دو۔ یہ سب کہنے والے کوئی ڈاکو نہیں تھے، کوئی قاتل نہیں تھے، یہ پولیس کی وردی پہنے لوگ تھے۔ FIR 4 دن، 5 دن، 10 دن تک درج نہیں کی گئی، اور جب درج ہوئی تو تفتیش کے نام پر گالیاں، ذلت اور مزید رشوت مانگی گئی۔ 4 مہینے بعد جب اہل خانہ نے کہا اگر اب بھی ہمارا بیٹا نہیں ملا تو ہم سڑک بلاک کر دیں گے، تو 2 دن بعد فون آیا۔ فون پر کہا آ جاؤ تمہارا بیٹا مل گیا ہے۔ اسی ہڈیاں دا کی کرنا، سارے پتر زندہ چاہیے، نہ زندہ دوے سانو قاتل چاہیے نے، سانو قاتل چاہیے نے، سانو انہاں دے سارے دروازے اگے لیا کے گولیاں مارنیاں چاہیے اور برش مارنے چاہیے، جویں سارے پتر دی ہڈیاں رولیاں نے، اس طرح ہڈیاں چن کے لے کے جان، چادراں چ پا کے کٹھیاں کر کے لے کے جان۔ سانو انصاف چاہیے، عوام دی ماں ہے، ساڈے بچے دی ساری ماں بڑھ کے بکھاوے، ساڈی بھی ماں بڑھ کے سانو انصاف دے۔ اوتے جا کے مروا کے بدلے لے، ساڈے اگے بھی آوے، آن کے ساڈے بھرا دے دشمن مارے۔ جے اگر کل تک نہ آئی، یہ شام تک نیا نہ ہویا، اسی روڈ بند کر دینا، اوتے اسی جا کے سڑکاں دی گڈیاں ساڈے اتن گان، اسی مر جانا ہے۔ جے ساڈا انصاف نہ ہویا، ساڈا قتل نہ لبا، اسی مر جانا ہے۔ یہ پھر سانو کوئی بندہ نہ کے روڈ کیوں بند کیتا ہے؟ جو ہے جے کہ لوکاں نے انصاف تم کریں، ساڈا انصاف تم نہ کریں، کی گل تو ساڈی ماں نہیں؟ آج کسے بچے تیرا ہی بچہ ہوئے انج ہوئے تو مرنا جاویں دی، تو ساڈے ماں باپ اور بہنوں کے دل میں امید تھی کہ شاید بیٹا زندہ ہو، لیکن وہاں نہ کوئی زندہ جسم تھا، نہ کوئی چہرہ، نہ کوئی مکمل جسم۔ زمین پر صرف ہڈیاں اور جسمانی آثار پڑے تھے، اور ساتھ ایک شرٹ، ایک پینٹ اور ایک جوڑا جوتے۔ پولیس نے کہا کپڑوں سے شناخت کر لو، یہ تمہارا بیٹا ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔ ذرا سوچئے، کسی باپ کو بلا کر کہا جائے کہ یہ ہے تمہاری بیٹی کی باقیات، ماں کو کیا دکھایا جائے؟
बहनों को क्या बताया जाए? क्या माँ को ये दिखा दिया जाए ताकि वो भी मर जाए? और सबसे बढ़कर दुख ये कि माँ बाप को अगर शक था और जिन लोगों पर शक था वो पकड़वाए भी गए तो फिर भी इंसाफ नहीं हुआ। पुलिस वालों ने रिश्वत लेकर इन मुजरमों को छोड़ दिया। ये कैसा इंसाफ है? आजकल ज़िंदगी का सिर्फ जो मोल है वो पैसा ही रह गया है। हर काम हर चीज़ की कीमत पैसा बन गई है। एक बाप जो 4 महीने से पुलिस स्टेशनों के धक्के खा रहा है और दहाइयाँ दे रहा है, इससे भी हर कदम पर पैसे ही मांगेंगे। 3 दिनों में मेरे चलो बच्चे के कपड़े तो मिल गए हैं ना, हड्डियां पहले नहीं गए थे? पहले भी गया था 1-2 बार, पर उस टाइम उसने मसरूफियत के साथ मेरी पास तवज्जो नहीं की। मैं किसी को साथ लेके गया, उसने फिर मेरी बात सुनी है। उसने 3 दिन में जिंदा है या मुर्दा है, मेरा उसने 3 दिन में काम किया है। क्या काम किया? ये मेरे कपड़े सिर्फ 4 माह के बाद उस आदमी ने मेरे 3 दिन में चलो मेरे कपड़े तो मिल गए ना, हड्डियां का मुझे क्या पता है मेरी हैं बच्चे की हैं कि और किसी की हैं। जब पुलिस इतना मेरे से जुल्म करती रही है, पैसे खाती रही है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ ये हड्डियां मेरे बच्चे की हैं? मुझे तो डीएम रिपोर्ट चाहिए ना। अच्छा, हड्डियां सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ कपड़े मिले ना? कपड़े मिले हैं, हड्डियां ऐसे रखी हैं कि जैसे आधा घंटा पहले या 4 घंटे पहले उधर रखी हैं। कपड़े ऐसे मिले हैं कि जब बच्चा मेरा घर से अभी डाल के गया है, 4 माह के वो कपड़े उधर नहीं थे। कपड़े उधर होते, मेरे कपड़े बच्चे के पाटे हुए, वो तो ऊपर मिट्टी डाली होती। जब कोई मसला मसाइल होता, कपड़े बच्चे मेरे के साफ मिले हैं, कपड़े मेरे बच्चे के साफ मिले हैं। लेकिन हड्डियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ? धीरे अंजन की नहीं ना, मेरा टेस्ट लिया है, ਡੀਐਨਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ? नहीं अभी नहीं हुआ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, क्यों नहीं ਡੀਐਨਏ करवाया गया? नहीं, हम गए थे उधर, उसने असर कैमरा लगाया कि तो जी ले जाओ, डीएम हम कर रहे हैं, रिपोर्ट दे देंगे। मेरा तो खून लेना था या मेरी बेगम का तो खून लेना था। डीएम कैसे होता है? खाली हड्डियां को ही होता है? मुझे क्या पता वो हड्डियां किसकी हैं, मुझे तो नहीं पता। चलो बच्चे तो कपड़े हमारे हैं, वो हड्डियां को तो नहीं पता मेरी किसकी हैं वो हड्डियां। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋर्ट ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ बस। ਡੀਐਨਏ क्यों नहीं करवाया जा रहा ਹੁਣ तक? वो अपना पुलिस वालों ने करवाना है ना डीएनए, उन्होंने मशवरा नहीं दिया। ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਫਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ। हाँ जी, कितने जाइए ऐसे कितने को जाइए? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। नाजरीन, आप सबसे अपील है कि आप इस दुखी बाप की आवाज़ बने। ये कैसा कानून है जो अपने ही इंसानों के साथ ऐसा सलूक करता है, जो इंसाफ की बजाय रिश्वत और नाइंसाफ़ी को फ़रोग देता है। ये केस सिर्फ एक बच्चे का नहीं, ये पूरे निज़ाम पर सवाल है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल कोई और माँ अपने बेटे की बाकियात उठाएगी। यही वजह है कि हमें सबको मिलकर इस माँ बाप की और बहनों की आवाज़ बनना है, ताकि इनको इंसाफ मिल सके, ताकि दोबारा कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, कभी किसी माँ की गोद ना उजड़े। 20,000 रुपया उन्होंने लिया और आते जाते सिगरेट पिलाओ, बोतल पिलाओ, इंज करो उंज करो, और जलील दी भी हद होंदी है ना, इन्होंने वो हद भी पार कर दी। दिक्के मार मार के निकालिया गया। केरी बेटी जेरे अपने बाप नू देखे कोई उनका गिरेबान पकड़े। 4 माह इन्होंने मेरे पापा दे कुत्तियां तरह हाल किया, इस तरह का कुत्तियां का भी नहीं हाल ना जेरा पुलिस वाले ने मेरे बाबा जानी का किया है। मरियम नवाज किधर है? उन्हें पूछे, इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। और उनसे ये पूछा जाए कि आपने शहबाज के बाबा के साथ और शहबाज के साथ कौन सा ये आपको सुन रही है, आईजी पंजाब भी सुन रहा है कि आपके बाप के साथ जिसका एक बेटा अगवा हुआ था, पुलिस उनके साथ इस तरह का रवैया इस्तेमाल कर रही थी। 4 माह हो गए हैं, केस चल रहा है और 4 दिन हो गए हम गली में पड़े हैं। हमारी तो अभी तक किसी ने नहीं सुनी। जब मरियम नवाज हमारे तक आएगी, हमारे सर के ऊपर हाथ रखेगी। आपके इलाके का एमएनए बड़ा आपकी मरियम नवाज का बड़ा लाडला है राणा तनवीर साहब, वो भी नहीं आए अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। अगर कोई आए तो हम ये रोएं, हम चीखें चलाएं, हमारी किसी ने कोई अभी तक बात नहीं सुनी। आपकी आवाज सुन रहे हैं, अब क्या कहोगे आप?
क्या हमारी आवाज़ सुन रहे? अगर आवाज़ सुन रहे होते तो आज हम इस हाल में होते। बताएं, आज हम इस हाल में होते, हमारा कोई हाल नहीं है। अब तो हमारे बाबा जाने भी नहीं हमसे देखे जाते हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त की जाती है, मरियम नवाज हमारे सर पे आए और मेरे भाई के दुश्मनों का भी यही हाल किया जाए। मेरे भाई के दुश्मनों की भी चारपाइयाँ इसी तरह उठाई जाए जिस तरह मेरे भाई की उठाई जाएगी। नाज़रीन, आपने इस मेरी बहन की सारी बातें सुनी हैं और इस चारपाई के ऊपर ये तस्वीर आप एक नौजवान की देख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे हड्डियां जो है वो शायद इस नौजवान की हैं भी या नहीं है। ये अभी तक किसी किस्म की कोई लेबॉर्ट्री से या कोई डीएनए से ये पता नहीं करवाया गया कि ये जो हड्डियां मिलने वाली हैं इस नौजवान की हैं या फिर ये किसकी हड्डियां हैं। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 4 महीने पहले अगवा का होने वाला मुकदमा जिसका आज तक पुलिस ने किसी भी किस्म का कोई सुराग नहीं लगाया। अब ये गरीब बहनें अपने भाई का इंसाफ मांग रही हैं और जिन जालिमों ने, जालिम भेड़िए दरिंदों ने, पुलिस वालों ने जो इनके बाप के साथ इंतहाई जानवरों जैसा सलूक किया है, इन तमाम पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी वही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून के मुताबिक इनके खिलाफ बनती है। अब इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ दिया जाए, हमारे भाई के कातलों को जो है वो जो कोई भी है उसको पकड़ के हमारे सामने लाया जाए और जिस तरह से हमारे भाई के साथ जुल्म किया है, बेदर्दी से उसे कत्ल किया है, इसी तरह इन जालिमों के साथ भी किया जाए। मरियम नवाज से FN वॉइस हब के ज़रिए सब ये बात का मुतालबा करते हैं कि इस वाक़ये में जितने भी पुलिस एहलकार शामिल थे, जिन्होंने एक बेबस बाप की बात गौर से नहीं सुनी, जिन्होंने 4 महीने तक उसकी दुहाइयाँ नज़रअंदाज की, जिन्होंने रिश्वत के बगैर FIR दर्ज ना की और जिन्होंने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, इन सब को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और सिर्फ मुअत्तल ही नहीं बल्कि इनको पुलिस के ओहदे से निकाला जाए। ये वो लोग हैं जो अवाम के मुहाफ़िज़ नहीं रहे, ये वो लोग हैं जो इंसाफ के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। ऐसे लोग पुलिस में रहने के हकदार नहीं हैं। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इनकी जगह ऐसे ईमानदार, इंसाफ पसंद और खुदा का खौफ रखने वाले अफसरान तानीयात किए जाएं जो अवाम की आवाज़ बने, जो गरीब का सहारा बने, जो बग़ैर पैसे लिए FIR दर्ज करें, जो मज़लूम के केस को ईमानदारी से देखें और जो पुलिस की वर्दी को इज़्ज़त का निशान बनाए, ना कि जुल्म का ज़रिया। क्योंकि अगर पुलिस ही गरीब के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा। ये मुतालबा किसी एक ख़ानदान का नहीं, ये पूरे माशरे की आवाज़ है। काम पे चला गया है, शाम को उसने कॉल किया है कि आज मैंने नहीं आना है, एक लड़के ने छुट्टी करनी है, मैंने नाइट लगानी है। आखिरी बार कॉल की थी कि मैंने आज नहीं आना। ये एक लड़के ने छुट्टी करनी है, मैंने उसकी डबल ड्यूटी करनी है। पापा मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे। हमारे इधर पास ही ना फौत की हुई थी, पापा जनाजे पे गए हुए थे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसने घर पे नंबर पे कॉल की है और उसने बोला आज मैंने नहीं आना, एक लड़के ने छुट्टी करनी है। और मेरे भाई को ये बात करके बंद कर दिया फ़ोन। हमने घर में कहा चलो ठीक है, भाई ने अब सुबह आना, सुबह आगे भाई ने अपनी ड्यूटी करनी थी हफ्ते वाले दिन की। हफ्ते वाले दिन शाम को भाई ने घर आ जाना था। कहाँ पे काम करता था? एसपोर्ट इंटरचेंज पे भाई चलान जमा करता था, प्राइवेट जॉब वालों के पास प्राइवेट काम करता था। प्राइवेट उनकी जॉब थी, सरकारी भी साथ है थी। उनके साथ काम कर रहा था। शहबाज की किसी के साथ कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा हुआ था? कोई लड़ाई नहीं, किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आपने हमारा घर तो देखा ही होगा, गरीब बंदों की किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी। हमारी कौन सी इतनी पैलियाँ वगैरह या जायदाद जिससे मेरे भाई ने किसी के साथ ये लेना देना होगा। हंसता खेलता हमारा भाई चला गया है। देखे मेरे भाई का चेहरा, देखे 4 माह हो गए हैं मेरे बाबा जाने को चौंकी जाते हैं, बुलवाते हैं आज कल, आज कल, आज कल, पैसे एंजे उंजे, बोतल मंगवाओ, सिगरट मंगवाओ। पापा कहते हैं ठीक है, सारा कुछ इस तरह करते हैं। जो बच्चे की गल की जाती फिर मेरे पापा नूं गिरेबान तो पकड़ के पूछा जाता तू कौन है। मेरे पापा फिर उत्ते पिटदे ने, यार तुहानूं पता नहीं मैं कौन हाँ, मैं शहबाज अब्बू बोलना। मेरा पुत्तर कितने तुसी कार्रवाई करो। अज कल उन्होंने कोई गलबात नहीं सुनी। मेरा भाई देखो हसदा खेलदा सचेरे नाल गया है और मेरे पापा नूं मोटरवेज इंटरचेंज ते बुला के देखो कई
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਵਾਪਸ 4 ਮਾह बाद ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। बुलाया सी 4 महीने बाद। आइए सब मिलकर FN वॉइस सबको सबकी आवाज़ बनाए ताकि ये आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे, ऐवानों तक पहुँचे और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहबा तक पहुँचे। इन 5 बहनों के इकलौते भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इंसाफ के बगैर माँ बाप को कभी सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ये जुल्म रुके, अगर आप भी चाहते हैं कि इंसाफ ज़िंदा रहे, तो बराए करम मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, ताकि ये आवाज़ हर घर तक पहुंचे और कोई ये ना कह सके कि हमें ख़बर नहीं थी। FN वॉइस सबकी आवाज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मेरा बेटा है, क्या हुआ था, किस तरह से अगवा हुआ था आपका बेटा? ये काम पे गया, वापस नहीं आया काम पे गया था? जी। की वापस काम करता सी? मोटरवे इंटर मोटरवे ते काम करता सी? जी, चलान नहीं जो प्राइवेट काटते उसके साथ। अच्छा, मोटरवे वालों के साथ प्राइवेट काम करता था? जी, 12 कितने अरसे से काम करता था वो? दिन हुए, 12-13 दिन। सिर्फ 12-13 दिन हुए थे? जी, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ये सर जी मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? जी देती है। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? भी कराई है, FIR भी कटाई है, सारा कुछ किया है, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। पुलिस ने कोई तलाश नहीं की। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? कहने कि हमें लारे लाई रखते थे, भी करो तो इंज करो, ये करो, CBR निकवाली है, सारा कुछ किया है। पैसे ਸੀਡੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਏ? हाँ जी, पैसे मैंने दिए CBR के भी। ਸੀਡੀਆਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? रेट करने जाते थे, डीजल के पैसे मैं दिए, खाने रेट के पे पैसे जाते थे? मेरे पास लेते रहे, खाने के। सिगरेट डब्बी लाया, बोतल लाया। ये कौन से थाने की पुलिस थी? चौकी इंचार्ज कोर्ट, चौकी कोट नूर शाह? जी काउंटी चौकी कोर्ट नूर। आपने बताया नहीं कि मेरा बेटा अगवा हुआ है तो आप मुझसे पैसे ले रहे हैं बजाय तलाश करने के? वो कह रहे कौन है आप, कौन सा बेटा है आपका, कहाँ से आए हो? FIR दर्ज करने के बाद भी मुझे पूछते हैं आप कहाँ से आए हो। ये कौन कहता था? ये चौकी इंचार्ज कासम लवाना साहब कहते थे। जो आपके मुकदमे के तफ्तीशी थे? जी, वो कहते आप कहाँ, उन्हें बताते नहीं थे कि मेरा बेटा अगवा हुआ है? बताते थे फिर भूल जाते थे, रोज ही बताता था जाके, रोज ही। वजह क्या थी? आपके साथ कोई इनकी कोई जाती रंजिश थी? नहीं, मेरी तो किसी साहब की कोई रंजिश नहीं है, ना को मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा है, ना को मसला मसाइल है। मैं तो की वजह से? आदमी हूँ। मरियम नवाज के आगे हाथ जोड़ के अपील की जा रही है, मेरे भाई का इंसाफ, मेरे भाई का इंसाफ। पहली भी और आखिरी भी बात, मेरे भाई का इंसाफ किया जाए। मेरे भाई के दुश्मनों को भी 4 पाई उनके साथ बिछाई जाए। अगर इंसाफ ना हुआ, हमें 4 माह बाद भाई मिले, हम इसी तरह आज हम गलियों में बैठे हैं, 4 दिन हो गए हैं। कल हमारी किसी ने अगर आज आवाज़ ना सुनी, कल हम अपनी सड़कों पे लाशें खुद बिछा देंगे, हम खुद दफन हो जाएंगे, फिर हम खुद दफन हो जाएंगे अगर किसी ने हमारी बात ना सुनी। लिहाजा मरियम नवाज के आगे अपील है, इधर आए और हमारा इंसाफ करे। मेरे भाई के दुश्मनों को भी इसी तरह 4 पाई के साथ उनके भी जनाजे उठाए जाएं। ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਗਾਲ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਣੀ। सर जी जिस दिन गया है ना, इन्ने को प्यार नाल उस दिन गया ना कि पता नहीं अल्लाह ताला ने साडे नाल ये वाकया। कौन सी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ये इसके दोस्त हैं, शेखपुरे के लड़के हैं, उसके साथ ये लड़ा था 1 महीना पहले, 27 दिन 25 दिन पहले लड़ा था, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? लड़ाई हुई थी। ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? रिश्तेदार ही हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ? ये मेरे ससुराल वाले के रिश्तेदार हैं। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, किस वजह ਤੋਂ? मुझे रंजिश की क्या क्यों क्यों लड़ाई हुई, बस ये मुझे नहीं पता, बच्चे ने बताया कि इस लड़के के साथ मेरी लड़ाई हुई है बस। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ? आदल ਆਦਲ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾਇਆ? वरना फड़ाया, ਆਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ? वरना मन्ने ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? एक बार मन्ने कि मुंडा शेखपुरे आया है, दूसरी बार मन्ने कि मुंडा कश्मीर है, चलो मैं तुम फड़ाना वा। मैं उतो पैसे लैके गया, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 20000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਜੀ ਨੇ 20000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ? ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ? पुलिस वाले ने रोज ही पैसे खाते रहे थे, रोज ही पैसे मेरे से खाते रहे, कभी बोतल ले आओ, कभी जूस ले आओ, सिगरेट की डब्बी ले आओ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ? मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता मिलती हैं कि हमारे से ही वो पैसे काटते हैं।
एक मेरा बच्चा गुम हुआ है, 4 माह से मैं चक्कर लगाता रहूं। मैंने पता नहीं कितना सामान कीमती, सिर्फ एक बच्चा था, मेरिया 5 बेटियां। मैं कहा चलो अज मेरा काम हो जाए, अज मेरा काम हो जाए, अज मेरा काम हो जाए, पर मेरी कोई सुनाई पुलिस वाले नहीं की थी। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? सानू अभी तक वो रिपोर्ट ही नहीं मिली जी, एंड जो खून टेस्ट करते हैं, मेरा किसी ने खून भी नहीं लिया, ना मेरे। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? सियाल नवाज है, शदरे बैठता है, उसके पास मैं 3 दिन गया हूँ।